Hallelujah. Praise the Lord, everybody. Welcome once again to Tabernacle Mission International, Church of the Rock International. Today we are, हम इस भाग में हैं और वो है मौके के लिए रुके रहना। आमीन। उसके भाग 4 में हम हैं और चलिए हम दुआ करेंगे और पवित्र आत्मा का स्वागत हम करते हैं और हमें ताकि वो हमें वो वचन में अगुवाई करे और लोगोस को रेमा में परिवर्तित करे। Amen. Thank you, Lord, my God, for this time that given to us. Holy Spirit of God, Lord, welcome, Lord. Thou art welcome in this place. Come, mighty comforter, come, mighty counselor, welcome you to charge right now. And bless the Lord, my God, a hand over every single person that's in this place, wherever they are located, in my holy hands, every yoke of darkness, every sickness, every infirmity, every disease that's holding upon their lives. Oh Lord, my God, I am destroying the consume with the fire of the Holy Ghost in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, Lord, my God, and I said, people, Lord, my God, free, get out, God, in Jesus' mighty name. Holy Spirit of God, thou art welcome, you take charge right now and speak to our hearts, speak to our lives. We come to the way we are, Lord, but we come to change. In Jesus' name, oh Lord, we pray and we ask. Amen. आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे, इसका हमारे मूल वचन को आइज़ाया 54 and verses 1 to verse 3. Isaiah 54 or verses 1 to verse 3. Sing, O barren, thou that didst not bear. Break forth into singing and cry aloud, thou that didst not travail with child. For more are the children of the desolate than the children of the married wife. Enlarge the place of thy tent, married wife, said the Lord. Verse 2. Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thine habitations. Spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes. For thou shalt break forth on the right hand and on the left, and thy seed shall inherit the Gentiles, and make the desolate cities to be inhabited. Amen. आइए हम दुआ करें. Holy Spirit of God, thank you for this time. Coming to you the way we are, but we come to change, to become more like you. We come, Lord, my God, that you will open up our eyes and show us, Lord, what we need to fill up with ourselves, Lord, with what we need to fill ourselves up with, Lord, my God. You take charge right now, Lord. Thank you for this time that you've given to us. Speak to our hearts in a new way. Is my prayer unto thee. In Jesus' name we pray and we ask. Amen. Amen. हम देख रहे थे यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय वचन 1 से वचन 9 में, और हम थोड़े और उसमें आगे जाएंगे. मेरा आज का भाग है भाग 4 और फिर से एक बार वही उपविषय है और वो है फिल योरसेल्फ अप विद द राइट स्टफ. फिल योरसेल्फ अप विद द राइट स्टफ. आपको खुद को सही चीजों से भर लो. आमेन. तो हम देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह उस शादी में गया था और वहां पर 6 पत्थर के कुंड थे जिनको पानी से भरना था, लेकिन वो पानी से भरे हुए नहीं थे, लेकिन वो शादी में तो थे. यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए वहां पर वो रखे गए थे, लेकिन उनके अंदर पानी नहीं था. और वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि उनमें पानी भरो, और उन्होंने उनको मुंह तक भर लिया. अभी पॉइंट नंबर 1 ये है कि फिल योरसेल्फ अप टू द ब्रिम. खुद को मुंह तक भर लो. मीन्स आपके अंदर जो भी आना चाहिए, जो भी आपके अंदर भरना चाहिए, वो टॉप सबसे बेहतरीन करो. ऐसे करो कि आपके जैसा मार्केट में कोई नहीं रहेगा. आपके जैसा मार्केट में कोई नहीं रहेगा. आप मार्केट में से एक नहीं रहने चाहिए. आपके जैसा मार्केट में कोई नहीं रहेगा. ऐसी तैयारी करो, खुद को ऐसे भरो. मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, आप जो भी हो, आप टीचर हो, आप प्रोफेसर हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप सीए हो, आप अकाउंटेंट हो, आप नर्स हो, आप लैब असिस्टेंट हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो. अगर मैंने आपके जॉब को यहाँ से नहीं बोला है या फिर बोला है, जो भी आप काम कर रहे हो, आप मैकेनिक हो, आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप वायरमैन हो, आप जो भी आप हो, आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हो, आप कॉल सेंटर में काम करने वाले हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कुछ भी हो, आप अगर आप जिस फील्ड में हो, उस फील्ड के लिए तैयारी सबसे बेहतरीन करना सीखो. सबसे बेहतरीन करो.
कुछ भी आपके अंदर मिस्टेक्स न होने दो, कुछ भी फ्लॉज न होने दो। उन फ्लॉज के ऊपर काम करो, खुद को काम करो, उस फ्लॉज के ऊपर खुद के ऊपर काम करो। जो भी चीज में आप गलत हो उसको हटा लो, जो भी चीज में आपको सही करना है उसमें करो। खुद को बेहतरीन, सबसे बेहतरीन टॉप लेवल तक लेके जाओ, ये आपको करना है। फिल योरसेल्फ अप टू द ब्रिम। पॉइंट नंबर 2, और वो है इट विल बी ड्रॉन आउट ऑफ यू। आपसे ही आपका चमत्कार आपसे ही लिया जाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब आज्ञा दी तो बाइबल ये कहता है वचन 8 में, एंड ही सेड अनटू देम ड्रॉ आउट नाउ। और जब उन्होंने उन कुंडों में से पानी जब लिया, तब लेते वक्त और जब वो जा रहे थे तब वो दाखरस में बदल गया। आपको ये बात समझनी जरूरी है, आपसे ही लिया जाएगा, आपके अंदर से ही। अगर आपके अंदर बेहतरीनता नहीं है तो वो बेहतरीनता आगे जाने के बाद में वो बेहतरीन, वो जो सिंपल चीज है, अगर आपने उसके ऊपर काम नहीं किया है, इफ यू नॉट वर्कड ऑन योर टैलेंट्स, इफ यू नॉट वर्कड ऑन फिलिंग योरसेल्फ अप विद द बेस्ट थिंग्स, नथिंग गुड विल बी ड्रॉन आउट ऑफ यू। आपके अंदर से कुछ भी अच्छा बाहर नहीं आएगा, आपके अंदर से कुछ भी बेहतरीन बाहर नहीं आएगा। अगर आपके अंदर बेहतरीनता है तो जो है अंदर है उसी को बाहर निकाला जाएगा। ये बात ध्यान में रखिए, उसी को बाहर निकाला जाएगा। तो आपके अंदर क्या है, आज आपको खुद को सही चीजों से भरना है। और ये पॉइंट नंबर 2 है, इट विल बी ड्रॉन आउट ऑफ यू। आपके अंदर से बाहर निकाला जाएगा। और पॉइंट नंबर 3 है, योर टैलेंट विल बी टेस्टेड। इट शुड हैव द पावर टू मोर देन प्लीज। उसमें वो ताकत, वो सामर्थ होनी चाहिए आपके टैलेंट में, आपके गुण में, आपके कौशल में, आपके काम में, कि संतुष्ट होने से ज्यादा वो सामने वाले को फिदा कर दे। सिर्फ संतुष्ट नहीं, वो आपके टैलेंट के द्वारा फिदा हो जाए। फिदा, उस ऐसे कामों में आपको खुद को लगाना है इन दिनों में। ये कोरोना एक्चुअली मैं कहता हूं आपके समृद्धि के पहले आने वाला ये टाइम प्लीज है। लोग जो करते हैं खेलते वक्त ऐसा थूक लगा के बोलते टाइम प्लीज। ये कोरोना, ऐसा समझो ये कोरोना ये कर रहा है आपको समृद्धि देने से पहले। परमेश्वर आपको कह रहा है टाइम प्लीज, जरा तैयारी करो, खुद को रिसेट करो, खुद को सही चीजों से भर लो। क्या आपको अंदर भरना है वो करो। आपके गोल को सेट करो, आपके विजन को सेट करो, आपके विजन को सही करो, आपके अंदर की तैयारी सही करो। जो आपको जो नहीं करना है वो बंद करो, आपको जो करना है वो खुद को शुरू करो। क्या किन विभागों में आप कम पढ़ रहे हो, आप देखो। मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ। अपने मसीह दुनिया में बहुत सारे लोग होने वाले हैं जो बहुत अमीर बनने वाले हैं, बहुत अमीर। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ इस मसीह के नाम में, बहुत अमीर बनने वाले, इतने अमीर बनने वाले हैं कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के श्रेणी में जाके बैठने वाले हैं। आप उनके फोटो टाइम मैगजीन में देखेंगे, उनको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। वो हर एक मैगजीन में रहेंगे, हर एक बड़े बड़े स्टेज पे आप उनको देखोगे। लेकिन मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। उन दिनों में बहुत सारे लोग उनके पास पैसे की अपेक्षा करके, मसीह के जो लोग हैं वो उनके पास पैसे की अपेक्षा करके, पैसे मिलेंगे इनसे हमें, इस अपेक्षा से उनके पास जाने वाले हैं। लेकिन आपको मैं पहले बताने वाला हूं, ये ऐसे लोग जो है जिन्होंने शून्य से मेहनत करके सही चीजों को अपने अंदर डाल के, जिन्होंने खुद को परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के कृपा अनुग्रह के द्वारा खुद को इतना ऊपर उठाया है, वो लोग आपको पैसा नहीं देने वाले। उन 5 कुंवारियों के बारे में याद करो, उन्होंने क्या कहा, जो बेचते हैं उनके पास जाके खरीदो। जैसे हमने मेहनत करके खरीदा, उसी तरीके से आप
जो बेचते हैं उनके पास जाके खरीदो। ये सिर्फ अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में नहीं है, सिर्फ उतना ही नहीं है, ये उन दिनों की समृद्धि के बारे में भी है। तो जो बेचने वाले हैं उन लोगों के पास जाके खरीदो, क्योंकि जब टाइम था, जब सही समय था, हम मेहनत कर रहे थे और आप लोग क्या कर रहे थे? सोए पड़े थे घर में। बस क्या कर रहे थे आप लोग? ये लोग आपको पैसा नहीं देने वाले, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ये आपको मौका देंगे, आपको मौका ये देंगे कि आपके जाले डालने का पानी में, लेकिन जाला होगा तो आप डालेंगे ना, और वो होगा भी तो वो सही होना चाहिए। वो फटना, पतरस की तरह फटने वाला जाला नहीं चलेगा ना। अगर आपके पास वो जाला ही नहीं है, अगर आपके पास जाला होता है लेकिन वो फटा हुआ है, अगर आपके पास नाव है लेकिन वो सही मेंटेन्ड नाव नहीं है, तो आप पानी में क्या लेके जाएंगे? आप what will you take in the water? They will give you an opportunity. They will not give you money. They are your brothers and sisters in the Lord. वो आपके भाई बहन है परमेश्वर में। वो आपको पैसा नहीं देंगे, लेकिन आपको वो संधि देंगे, एक मौका देंगे चमकने का। लेकिन वो भी अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, सही नहीं लिया, तो आप गए। आप मसीह में होने के बावजूद भी आपके पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मसीह ने आपको प्रभु यीशु मसीह ने आपको बहुत टाइम दिया है खुद को सही करने का। याद करो वो समय जब प्रभु यीशु मसीह गालील के उस समुद्र के पास आया था, और वहां पर पतरस की नाव इस्तेमाल करने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को एक मौका दिया, चमकने का एक मौका दिया, खुद को भर के लेने का एक मौका दिया, अमीर होने का। लेकिन पतरस के जाले सही नहीं थे, क्योंकि वो निराश था, और वो निराशता में वो काम कर रहा था, निराशत में काम कर रहा था, और उसने खुद के जालों को सही नहीं किया। इसलिए जब उसके पास बहुत बड़ी पकड़ आई तो वो जाले फटने लगे। यही तो प्रॉब्लम है और होने वाली है बहुत सारे मसीह लोगों के साथ, कि जब सही मौके का टाइम आएगा उनके जिंदगी में, उनको जब मौका उनके सामने ऐसा परोसा जाएगा, वो मौका भी ठीक से नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी ठीक नहीं है। आप सेल्समैन हो, अगर आप अपने आप घर पे बैठे हो, यार इंग्लिश सीखो ना, इंग्लिश में परफेक्ट हो जाओ यार, बहुत फाड़ू इंग्लिश बोलो, ताकि जब जब वहां पर आप जाओगे तब आपको बोला जाएगा बॉस मैनेजर छोड़ के चला गया है। सेल्समैन तो कोई भी हो सकता है, तू मैनेजर का काम करेगा क्या? उसके लिए तुझे इंग्लिश अच्छा आना चाहिए। न हा हु हा हुई हा हु ही, खत्म। फिर बोलेंगे यार मेरे को, यार लॉर्ड ने कोरोना के द्वारा परमेश्वर ने मुझे 3 महीने दिए थे इंग्लिश सही करने के लिए। यार मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, ऐसे ही बैठा रहा, मैं ऐसे ही बैठा रहा घर पे। अरे क्या किया मैंने, एक इसके बाद एक न्यूज़, वो न्यूज़, फलाना न्यूज़, इमका न्यूज़, और व्हाट्सएप पर टिकटॉक। अरे क्या किया मैंने? अभी यार जॉब डायरेक्ट सैलरी 60,000। अरे यार लेकिन इंग्लिश नहीं आता मुझे यार, क्या करूं मैं, क्या करूं अभी क्या करूं? जब टाइम था तेरे पास, तब 11 बजे उठना, क्या करना है, उठ के क्या करूं मैं, घर पे तो सोना है यार, लॉकडाउन किया है यार, क्या करना है? काय को सुबह उठूं मैं 6 बजे, काय को उठूं मैं 4 बजे, क्यों उठूं मैं यार 11 बजे उठता है यार, वैसा क्या 12 बजे उठता, क्या करना है? मैं कल ही अल जज़ीरा का न्यूज़ सुन रहा था मैं, उसमें बता रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ का भी प्लान, ये पूरे दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ का प्लान ये चल रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दिया जाए, और जो हम करोड़ों रुपए ले रहे थे यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, उन करोड़ों रुपयों को कैंसिल करके छोटी सी फी रखो, ताकि कोई भी दुनिया में कोई भी सबसे महंगी से महंगी पढ़ाई कर सके।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, हार्वर्ड है, जो भी है, उन सब का आज ये टॉपिक चल रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम बड़े बड़ी डिग्रियां जिनके लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, उन डिग्रियों को हम हजारों में लोगों को दे सकते, थाउजेंड्स, ओनली इन थाउजेंड्स। इसका मतलब हो गया, अगर मैं चाहता हूं कि मैं हार्वर्ड से इंजीनियरिंग करूं, सिर्फ शायद सिर्फ 10,000 या 50,000 या सिर्फ 1 लाख रुपीज में मुझे वो डिग्री मिल सकती है ऑनलाइन, और कोई भी कैंपस नहीं रहेगा, कोई भी यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत, कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं रहेगी, हमें घर पे ही हम पढ़ाई करेंगे। और वो नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम भी दे सके। तो आपके बच्चों को सोचिए, जिनको हार्वर्ड जाने के लिए शायद 10 करोड़ लगने वाले थे, आज उनकी शायद 10 लाख में या 5 लाख में हार्वर्ड डिग्री मिल सकती है। आपके घर में बैठे बैठे दुनिया इस तरीके से खुद को चेंज कर रही है, आपके घर में मौके आने वाले हैं। लेकिन अगर आपने खुद को तैयार नहीं किया, आपके बच्चों को वैसे तैयार नहीं किया, तो आपके बच्चे उन एग्जाम्स के लिए भी, उन परीक्षाओं के लिए, उन यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज के लिए भी खुद को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपके वजह से, आपके आलस के वजह से। ये बात सोचो। फिर किसी को दोष मत देना और किसी सेवक को मत बोलो मेरे लिए दुआ करो। नहीं करने वाला कोई आपके लिए दुआ मैं तो कभी नहीं करूंगा, ध्यान में रखें, मैं तो कभी नहीं करूंगा अगर आपने सही मौके का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो ये मौका आपको दिया गया है खुद को बदलने का, खुद को बढ़ाने का, खुद को अपग्रेड करने का। मोबाइल में बैठे बैठे सिर्फ अपग्रेड्स एप्स का मारो मत, वो मोबाइल बाजू में रखो और खुद का अपग्रेड मारो, खुद का अपग्रेड मारो। Upgrade yourselves. Don't upgrade the apps on your mobile. Upgrade yourself. Because opportunity is going to come your way. It's going to come your house, knocking on your doors. Knocking on your doors. It's going to come on your doors. But you should have something inside. आपके दरवाजों पे दस्तक देते हुए वो मौके आने वाले हैं, लेकिन आपके घरों में कुछ तो होना चाहिए उन सही मौकों को अंदर लाने के लिए। पतरस की तरह आपके जाले फटने नहीं चाहिए। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, जो लोग इन मौके का सही इस्तेमाल नहीं करने वाले, मैं उनके लिए दुआ भी नहीं करूँगा। और मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि कोई भी परमेश्वर का सेवक, कोई भी हो, कितना भी बड़ा माइका लाल हो, उनकी दुआ भी आपके लिए सुनी नहीं जाने वाली। आप प्रेयर टावर क्या, प्रेयर लाइट हाउस क्या, आप प्रेयर कुतुब मीनार क्या, या प्रेयर आप वो क्या अल बुर्ज खलीफा, ऐसा कोई भी प्रेयर टावर रहने दो, उसको भी बताएंगे ना आप, तो भी नहीं होने वाली आपके लिए कबूल दुआ। क्यों? क्योंकि आपने वो ऐसे आप वो सेवक हो जिसने वो 1 रुपया लिया और जमीन में गाड़ के बैठ गए। क्या टैलेंट्स नहीं है? टैलेंट्स आपके पास है, सही चीजों को खुद में भरो। अभी भी मौका नहीं गया है, अभी भी मौका नहीं गया है सही चीजों को। तो पॉइंट ये है, आज मुद्दा ये है कि मैं क्या करूं, सही चीजों को खुद में भरने के लिए मैं करूं क्या। आइए हम यशायाह इसका 54वां अध्याय और वचन 2 पढ़ेंगे। बाइबल ये कहता है, enlarge the place of thy tent। मैं हिंदी में इसको पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है और मुझे हिंदी ठीक से पढ़ने नहीं आती है, लेकिन मैं इसका अनुवाद ऐसे समझ सकता हूँ कि खुद के तंबू की जगह बढ़ा। खुद के तंबू की जगह बढ़ा, तंबू नहीं, खुद के तंबू की जगह। enlarge the place of thy tent। तू जिस जगह में खुद को समेटे रखा है, खुद को तू कंफर्टेबल बना के रखा है, खुद को तू आरामदायी बना के रखा है। हाँ, मेरा जिंदगी यह है, मैं इतना ही काम करूंगा, मैं सेल्समैन हूँ, मैं फिटर हूँ, मैं मैकेनिक हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं खुद काम करने वाला गार्डनर हूँ। क्या उसको बोलते हो, उसको बोलते हैं गार्डनर को,
माली हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, इतना ही रहूँगा मैं, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही है अभी। हाँ, बहुत आराम से चल रहा है। हाँ, क्या मेरा नौकरी है, मेरे को 10-15 हज़ार मिलता है। अरे 10-15 हज़ार, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर दुनिया में पेट्रोल की कीमती इतनी गिर गई है कि पेट्रोल पंप वाले लोगों को पैसा देते हैं, भाई पैसा ले और पेट्रोल भर। लेकिन हम ऐसे देश में रहते हैं, इन दुनिया में इतना फ्री पेट्रोल मिलने के बावजूद भी हमारे इधर 90 रुपए के ऊपर चला गया है। ऐसे देश में हम रहते हैं, ध्यान में रखो। तुम्हारा 10-15 हज़ार है ना, आपको ऐसे लगेगा कि 500 रुपये है। ऐसा है ना, कंफर्ट है, इतना ही जिंदगी। मस्त। भूल जाओ, अगर आप खुद के तंबू की जगह को आप खुद नहीं बढ़ाओगे तो नहीं होने वाला। पेट के तंबू की नहीं, पेट के तंबू की नहीं, जो आता है उसकी तंबू की। इसके लिए और जानने के लिए आप जुड़े रहिए अगले भाग में देखने वाले पार्ट 5 में कि कैसा करना है। एनलार्ज द प्लेस ऑफ दाई टेंट। आमेन। क्लिक ऑन टॉप हियर, जब अपलोड होगा तो आपको यहाँ पर ये पार्ट मिलेगा। Amen. Let us all pray, everybody. Thank you, Lord, my God, for today's word that came to us alive. Blessed Lord, my God, I pour before the throne of grace and mercy every single person, every single ear that has heard your word, Lord. And beloved Lord, my God, I come against every yoke of darkness, every bondage of the enemy, every demonic bondage, demonic influence, demonic possession that's holding upon these lives, oh Lord, my God. I've been destroying the consume of the Father, the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, Lord, my God. And I said to people, Lord, my God, free, get out, God, in Jesus' mighty name. And beloved Lord, my God, whose Spirit of God, just breathe afresh upon the saints right now, wherever they are, Lord. Just breathe afresh upon them right now, Lord, my God. Just breathe afresh. Just touch, oh Lord, my God. Just touch, 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 touch. Touch the fresh anointing of your presence, Lord. Just touch. Just fill them, Lord, my God. Just fill them, Lord, my God. Just fill them, Lord, my God. Fill them, Lord. Fill them up. आइए हम हमारे हाथों को ऊपर उठाएंगे इस समय, आंखों को बंद करते हुए इस समय पवित्र आत्मा का स्वागत अपने हमारे जिंदगी में नई तरीके से कीजिए, अपने जिंदगी में नई तरीके से कीजिए। और पवित्र आत्मा को कहिए कि पवित्र आत्मा मुझे भर, मुझे तुझसे भर, मुझे और तू चाहिए, मुझे सही चीजों से भर दे, मुझे इल्म दे, मुझे ये समझदारी दे, ये जानकारी दे कि मेरे अंदर क्या सही नहीं है और क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मेरे आंखें को खोल, मेरे आंखों को खोल, मुझे दिखा, मुझे परिवर्तित कर, मुझे नई उमंग दे, नया जोश दे, नई अग्नि दे, और मुकाब के नई मुझे नए पंखों से भर दे, ताकि मैं नई ऊंचाइयों पर जा सकूं। Holy Spirit of God, just breathe afresh, just breathe afresh, just breathe afresh, just fill your people, Lord, my God. Touch, 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 touch the anointing of your presence, Lord, my God. Just breathe a fresh anointing of your presence right now, Lord, my God. Just touch, just touch, just touch. Just touch, just touch, touch, touch. A fresh anointing of your presence, every yoke of darkness, every bondage of the enemy that's holding upon these lives, that is taking them away from putting efforts in the right place, oh Lord, my God. I better destroy the power of darkness in Jesus' name. Get out, God, in Jesus' name now. Holy Spirit of God, just breathe afresh upon your saints in this house, Lord. Just touch them, Lord. Change them, fill them up, Lord, my God. Just fill them up, Lord, my God. Every yoke of darkness, get out, God, in Jesus' name. Go, get out right now. And Lord, my God, release the anointing of your presence, Lord. Just fresh anointing, fresh anointing, fresh anointing, fresh anointing, fresh. And blessed Lord, my God, this moment, Lord, fill up every soul, fill up every single person, Lord, my God. Just fill them up, Lord, my God. Just fill them up. Fill, Lord, fill. Heal every sickness, every infirmity, disease that's holding upon their spirit, soul, body, mind, heart, and life, Lord. I bind and destroy and consume with the Father, the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, Lord. And I set the people free. Get out, God, in Jesus' name. Every sickness, every infirmity, every disease, go, get out every spirit of fear. God, in Jesus' mighty name. And beloved Lord, my God, I release your healing anointing, Lord. Just touch. And blessed Lord, just breathe afresh. Touch. And beloved Lord, my God, I bless your people
The blessings mentioned in your word for people right now. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. And let the name of the Lord be put upon thee and upon thy children. And the Lord bless thee and thy children. Thank you, Lord, my God, for this time. Thank you for the anointing of your presence, Lord. And blessed Lord, I bring your people, their spirit, soul, body, mind, heart, and life, their families, their going and coming, their job, their businesses, everything, Lord, under the covering of the Lord's blood, the Lord's oil, and the fire of the Holy Ghost. And I pray, help your people to bring forth fruit hundredfold according to today's word, Lord. Thank you for this time. And I believe and I trust, Lord, that very soon you'll be opened up from this lockdown, Lord, my God, and your people, Lord, will face the governors, will face the people that will test what's inside of them, Lord. And help our people, Lord, to shine so brightly that people will ask, even after Corona, you still have got the very best in you? How come? In Jesus' name, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, everybody. मुझे विश्वास है, मुझे गारंटी है कि कोरोना के बाद में जब ये लॉकडाउन खुलेगा, जब हम सारे लोग हमारे कामों पे, हमारे बिजनेसों पे जाएंगे, और तब ये दुनिया के जो लोग हैं, ये जो गवर्नर्स है, जो हमारे कामों को परखते हैं, चखते हैं, देखते हैं, ये पूछेंगे कि इतने कोरोना के बाद में भी तेरे पास इतना बेहतरीन कैसे क्या तेरे में अभी भी इतना बेहतरीन है, तब आप कहेंगे यीशु मसीह के द्वारा। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। तो बहुत सारा परमेश्वर ने महान कार्य किया आपकी ज़िंदगी में, विश्वास रखता हूँ, और आप इस महान कार्य को प्रतिसाद दीजिए, खुद को बदलिए, खुद को खोलिए, खुद को ऐसा फैलाइए, ताणिए, स्वतःला फाडा, स्वतःला फाकवा, मोठा करा, स्वतः चांगल्या गोष्टींनी भरून काढा, खुद को सही चीज़ों से भर लो, खुद को तानो, जो नहीं है, जो नहीं चाहना, नहीं होना चाहिए उनको, उसको निकालो, जो होना चाहिए उसको खुद को भर डालो। आमेन, हालेलुया, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. I'm excited for what God is going to do in my life, in your lives, and in the days to come. And I tell you, मेरी दुआ है हर कोई हमारी कलीसिया का हर कोई बहुतायत से, आशीषों से, परमेश्वर की उपस्थिति से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से और महिमा से, भरपूरी से बहते रहे, और उतना ही नहीं, अमीरी से ताज हो जाए। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। दुआ में रहिए, आगे बढ़िए, और अगले भाग के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी, लव यू।